हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक एडुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज़ प्रकाश सर और आज हम ज्योमेट्री करने वाले हैं, दैट इज़ मैथ्स 2 चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम रिमेनिंग सम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1 that is sum number 8, 9 and 10, and then we are going to move to problem set 2. Practice set 2.2 is not there for the exam of March means 2021 due to COVID reason. So let us move to the sum 8 of practice set 2.1. So what does this says? Find the diagonal of a rectangle whose length is 35 cm and breadth is 12 cm. मीन्स हमें डायगोनल पता करना है रेक्टेंगल का, जिसका रेक्टेंगल का लेंथ दिया गया 35 cm एंड ब्रेथ दिया गया 12 cm. आई विल फर्स्ट ड्रॉ द रफ फिगर. So this is a rough figure. ABCD is a rectangle, AC is the diagonal. Draw this figure with the help of a scale, and we know that if it is a rectangle ABCD, then this is 90 degree, and length of a rectangle is given as 35, so BC is 35, even AD is also 35, breadth is 12 centimeter, AB is 12 centimeter. Okay, so this is also 12 centimeter. So in right angle triangle ABC, we see that we have a height and a base, and we have to find the hypotenuse, that is AC. Okay, so if you find the hypotenuse of right angle triangle ABC, that means we are finding the diagonal of rectangle AC. So let us move to the solution part. Solution part में आप देख रहे हैं कि in right angle triangle ABC, okay, so angle B is equal to 90 degree. We can write because it's a property of a rectangle, okay. So angle B is 90 degree, we know. So now by Pythagoras theorem we can find hypotenuse AC. Pythagoras theorem. So we know that AC square is equal to height square plus base square, that is equal to AB square plus base है आपका BC, तो BC square. So AC आपको पता करना है. AC square is equal to what is AB? AB is given as 12, तो 12 स्क्वायर करेंगे प्लस what is BC? BC is given as 35, 35 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 12 स्क्वायर इज़ 144 प्लस 35 स्क्वायर इज़ 1225. ओके, सो इफ़ आई ऐड इट हियर इन द रफ फिगर, तो सपोज अगर मैं रफ पार्ट में ऐड करूँ तो 1225 प्लस 144 गिव्स 1369. ओके, so now 144 plus 1225 is 1369, that is equal to AC square. तो AC square is equal to 1369 is the square of 37, so I can write 37 square also. Square I can cancel, so now I will get AC is equal to 37 centimeter. तो what does this mean student कि उसका डायगोनल जो है हाइपोटेन्यूस हमें मिल गया AC, तो इसका मतलब AC is the diagonal of rectangle ABCD. So now I can write the answer as the diagonal of a rectangle, is 37 centimeter. Okay students, so it was a very easy sum because पाइथागोरस थ्योरम लेना है, और ये आप 7th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो आप देख रहे इट वॉज सच एन ईजी एग्जाम्पल. मूविंग ऑन टू सम नंबर 9. सो दिस इज़ व्हाट द सम नंबर 9 इज़. इन द फिगर गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया बाजू में, तो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR. तो यहाँ पर आइडेंटिकल मार्क भी दिया हुआ है कि डबल लाइन से कि RM इज इक्वल टू MQ. सो एंगल PRQ, वी कैन सी एंगल PRQ इज़ 90 डिग्री. And then what we have to prove? We have to prove that PQ square. So this PQ square is the hypotenuse of PRQ triangle. So PQ square is equal to 4PM square, and PM is the hypotenuse of right angle triangle PRM. So 4 times PM square minus 3 times PR square. This we have to prove. So as this chapter is based on Pythagoras theorem,
So now we have to start with the Pythagoras theorem in triangle, biggest triangle PRQ. Before that, one line is given, M is the midpoint of QR. So I will start with the solution here, that M is the midpoint of segment QR, that is given. So this segment is this statement is given. So what does it mean? It means that RM is half of QR. It means that RM is half of QR. Okay, so if I cross multiply, what the statement will come? QR is equal to 2 times RM. Okay, QR is equal to 2 times RM. This I will write it as first equation. Okay, QR is equal to 2 times RM. Now you can see there are two right angle triangle. One is PRQ and the other right angle triangle is PRM. And if I take the Pythagoras theorem in triangle PRQ, so that will be Pythagoras theorem says PQ square is equal to PR square plus RQ square. PQ square is equal to PR square plus RQ square. Okay. So in right angle triangle PRQ, by Pythagoras theorem, PQ square is equal to PR square plus RQ square. And now we know that RQ is 2 times RM. So I will substitute RQ के जगह पे I will write 2 times RM. So next step will be PQ square is equal to PR square plus, instead of RQ QR के जगह पे मैं 2 RM लिखूँगा. Right here 2 RM and the square जो है वो ऊपर लिखूँगा. And now I will square it. तो PQ square is equal to, what will be the next step? PQ square is equal to PR square plus 2 का square is 4. Okay, and RM square is RM square as it is, RM square. Okay, so now if we see the prove that what I have to prove, PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. So इसमें आप देख रहे हैं कि PQ is there, okay, PR is also there, but PM हमें चाहिए, but I have RM. Okay, I have RM. तो RM के सब्स्टिट्यूट के लिए मैं क्या करूँगा? I will take in right angle triangle PRM and I will take the Pythagoras theorem. In right angle triangle PRM, I will take the Pythagoras theorem. Okay, let this be equation 2. Okay, and this is from 1. Okay, so now I will take in right angle triangle PRM, that is by Pythagoras theorem. That is by Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem says? So PM square is equal to PR square plus RM square. PM square is equal to PR square plus RM square. PM square is equal to PR square plus RM square. Okay, PM square plus RM square. तो what is RM? अगर मैं यहाँ पर मुझे RM नहीं चाहिए, so RM के जगह पे I can, ये PR square is equal to this I can cancel PM square to the left hand side and I write it here as right hand side. Okay, I can write this. तो PR square plus RM square is equal to PM square, आप यहाँ से निकाल के यहाँ पर लिख दिया. So now RM square will be PM square minus PR square. Okay, this is third. So what is RM square? RM square is PM square minus PR square, क्योंकि PR square मैंने अभी राइट साइड में ले लिया. So this I will substitute PM square minus PR square instead of RM square यहाँ पर जो है RM square 2 में. So I will write it here. Substitute RM square is equal to PM square minus PR square in equation 2. Okay, तो इक्वेशन 2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं. सो इक्वेशन 2 जो है इसमें आप लिखेंगे PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4RM स्क्वायर. ओके, दिस वाज इक्वेशन 2 और इसमें RM स्क्वायर मुझे लिखना है PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. सो आई विल कीप PQ एज इट इज़, PR एज इट इज़, PR स्क्वायर सॉरी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस
4 आर एम स्क्वायर के जगह पे मैं लिखूँगा पी एम स्क्वायर माइनस ब्रैकेट पी एम स्क्वायर minus PR square. Okay, so I'll multiply this again. I will write this same PQ square is equal to PR square plus 4PM square, 4PM square multiply करने के बाद में minus 4PR square, 4PR square. Okay, so now I can see that PR square and PR square are same. तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया, 3 पुट ऑन द बिगर नंबर माइनस, ये बिग नंबर है इसका माइनस आएगा. So this PQ square I will write as it is, and then I will write this 4PM square, and what is the subtraction of this part? PR square minus 4PR square is minus 3PR square. So this is what we have to find. You can see that आप देख रहे हैं कि prove that में PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square पूछा गया था, and I have proved that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. ओके, तो लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन हियर. एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर दिया था. आई रोट आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट. सो आई क्रॉस मल्टीप्लाई. सो व्हाट आई विल गेट, क्यू आर इज इक्वल टू आर एम. आई विल टेक इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम पी आर क्यू में क्या हो रहा है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर एज इट इज़ प्लस आर क्यू की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ 2RM द होल स्क्वायर. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी ये सब सेम आएगा एज इट इज़ 2 स्क्वायर 4 RM स्क्वायर आ गया. सो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल PRM, in right angle triangle PRM, what is the Pythagoras theorem? PM square is equal to PR square plus RM square. So in right angle triangle PRM by Pythagoras theorem, I can write PR square plus RM square is equal to PM square. So now I have to find RM square. So I will take PR square to the right hand side. So PM square minus PR square and substitute RM square is equal to PM square minus PR square in equation 2. तो इक्वेशन 2 आपका ये इक्वेशन 2 है. दिस इज इक्वेशन 2. तो पी क्यू स्क्वायर इज पी आर स्क्वायर प्लस 4 RM स्क्वायर में मैं RM स्क्वायर के यहाँ पे लिख रहा हूँ PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर. क्यों? क्योंकि RM स्क्वायर इज टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर यहाँ पर है. तो आई मल्टीप्लाई 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर एंड आई विल सब्ट्रैक्ट PR स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर. आई विल गेट 3 PR स्क्वायर. 4 PM स्क्वायर आपका एज इट इज़ है, पी क्यू स्क्वायर आपका एज इट इज़ है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको सम नंबर 9 समझ में आया हो. Now let us move to question number 10. That is the last sum of this practice set 2.1 of second chapter Pythagoras theorem maths 2. So what does it says? Walls of two buildings on either side of the street are parallel to each other. Means दो walls है जो दोनों मतलब एक रोड के ऑपोजिट साइड में है और पैरेलल है. A ladder 5.8 meter long is placed on a street. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at a height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, means ladder आपका ऐसा है सपोज, तो बाद में अगर आपका ladder इस तरफ मूव करेंगे तो what will happen? Its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. तो find the width of the street. तो मैं आपको यहाँ पर एक पेंसिल से रफ डायग्राम बना के बताता हूँ. तो इट शुड बी समवट लाइक दिस. once again हम walls of two buildings on either side of the street means suppose this is a street. ये आपका street है, रफ फिगर है. suppose BC is the street and walls of two buildings. suppose यहाँ पर एक wall है और यहाँ पर एक wall है. ओके, तो दो walls दिए गए हैं, तो they are on opposite side and are parallel to each other. एंड लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग इज़ प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट. तो एक लैडर हमने प्लेस किया है. सपोज़ यहाँ पर आगे लिखा है इट टॉप रीचेस द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर. सपोज़ ये आपका 4 मीटर वाला बिल्डिंग है. तो सपोज़ दिस इज़ DC इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड D इज़ द विंडो की एट अ 4 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम C. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लैडर है. तो दिस इज़ द लैडर. सपोज DE इज़ द लैडर. ओके, तो जिसका लैडर का हाइट दिया गया है 5.8 मीटर. तो यू कैन गेट इट दैट लैडर
इज़ 5.8 मीटर लॉन्ग। तो सपोज़ ये लैडर जो है वो इस तरफ प्लेस करेंगे तो इट विल रीच द टॉप ऑफ द अदर बिल्डिंग ऑफ हाइट 4.2। व्हाट दैट मीन्स ये बिल्डिंग का हाइट कितना है 4.2 मीटर दिया गया है। तो सपोज दिस इज़ ए, सपोज ए इज़ द विंडो ऑफ दैट, ए इज़ द विंडो ऑफ दैट बिल्डिंग of the wall AB, okay, and this ladder AE and ED is the same ladder, लेकिन पोजीशन उसका ये बिल्डिंग पे टच करेंगे तो DE है, और फिर बाद में वही लैडर अगर इस तरफ करेंगे तो उसका पोजीशन होगा A। तो A इज़ ऑल्सो 5.8 मीटर, ओके, A इज़ ऑल्सो 5.8 मीटर। तो let us draw this figure and we know that walls of the building are always perpendicular to each other, ये perpendicular होता है हमेशा। तो ये डायग्राम मैं अभी पेपर पे उतारता हूँ, ओके। सो आप देख रहे कि ये सेम एग्जैक्ट फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया है। AB एंड DC इज़ द वॉल्स ऑफ द टू बिल्डिंग। सो यहाँ पर लिखा है लेट पॉइंट A एंड D बी द विंडोज़ ऑफ द टू बिल्डिंग्स ऑफ द वॉल AB एंड DC। A जो है विंडो है, D जो है विंडो है, वो भी एक विंडो है, एंड ऑफ AB एंड DC रेस्पेक्टिवली। AE एंड ED रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम लैडर। AE और ED जो है वो डिफरेंट पोजिशंस है, क्योंकि पहले AE के पास था, अभी बाद में ऐसा पोजीशन ED हो गया है। ऑफ लेंथ सेम है AE और ED का, क्योंकि वही सेम लैडर यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो BC is the width of the road, we can say BC is the width of the road, and AB is parallel to DC they have given, okay, and let E be the common point of contact of ladder and the ground। ये आपका लैडर है, लैडर का फुट है, और ये आपका रोड, हाँ, ओके। तो आप देख सकते हैं कि these are the what is given here। first of all they have given that AB is parallel to DC, ओके। ऑब्वियसली AB इज़ पैरेलल टू DC, और जो भी बिल्डिंग की जो वॉल होती है वो रोड को परपेंडिकुलर होती है, दैट वी आर गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पर भी DC इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC, दैट इज़ विड्थ ऑफ रोड को परपेंडिकुलर होगा। सो AB इज़ पैरेलल टू DC एंड दैट इज़ वाई नाउ आई कैन राइट इट एज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो 90 डिग्री जैसे मिलेगा, नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक पाइथागोरस थ्योरम। सो सपोज इफ आई टेक पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल DCE, in right angle triangle DCE, so what is the formula of Pythagoras theorem? DE square is equal to DC square plus EC square, that is hypotenuse square is equal to height square plus base square। what is base square? EC, क्योंकि हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? DCE ट्राइंगल ले रहे हैं, ओके। सो लेट अस टेक पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल DCE। आप देख रहे हैं कि मैंने पहले इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि व्हाट इज़ A, व्हाट इज़ D, व्हाट इज़ AB, व्हाट इज़ DC, व्हाट इज़ AE, व्हाट इज़ DE एंड BC। BC इज़ द विड्थ ऑफ द रोड, ओके। सो पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि AB इज़ पैरेलल टू DC, दैट इज़ गिवन। So what does it mean? That both are perpendicular to the same wall, same road, that is BC. Therefore angle B is equal to angle C is equal to 90 degree. So now I'll write in right angle triangle DCE, in right angle triangle DCE by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem. So what does the Pythagoras theorem says? That is D square is equal to DC square plus C square. D square is equal to DC square plus C square. D square is equal to DC square plus C square। अगर आप देखेंगे डायग्राम, D is given as D is the ladder, ladder का हाइट दिया गया है 5.8, and what is DC? DC is a 4 square plus EC square आपको पता करना है, ओके। and if I square it in the rough figure, in the rough column, sorry, that is 5.8 into 5.8, I will get 33.64, that you can multiply in the rough column. So 5.8 the whole square is 33.64 is equal to 4 square is 16 plus EC square. So what is EC square then? EC square is equal to 33.64 minus 16, तो EC square is equal to
33.64 माइनस 16, क्योंकि आपको पता है प्लस 16 लेफ्ट साइड में गया तो माइनस 16 हो गया। 33.64 माइनस 16 इज इक्वल टू EC स्क्वायर, तो मैंने इसको उल्टा लिखा है, EC स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16। सो इफ़ आई सब्ट्रैक्ट इट, 33.64 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 16.00 एंड दैट विल बी इक्वल टू 33 स्क्वायर माइनस 16, दैट विल बी 4.2, sorry, 17.64, that is equal to 17.64. So now what is EC square? EC square is equal to 17.64. If I subtract this 4, 6 फिर बाद में 13 में 6 गया 7 और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो what is the square root of EC? What is the square root of 17.64? तो स्क्वायर रूट रखे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 17.64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो वह है 4.2, वह है 4.2 मीटर। तो व्हाट इज़ EC? EC इज़ 4.2 मीटर। सो अगर यहाँ पर आप स्क्वायर करके चेक करेंगे 4.2 इंटू 4.2, सो दैट विल बी 17.64। ओके, सो इन दिस वे वी गॉट EC। तो वेयर इज़ द EC इन द डायग्राम, आप देख सकते हैं डायग्राम में EC इज़ 4.2, EC आई गॉट इट एज 4.2। तो यहाँ पर अगर मैं पेंसिल से लिख दूँ, दिस इज़ 4.2 बिकॉज आई गॉट इट जस्ट नाउ, 4.2 मीटर। एंड नाउ इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABE, आई हैव टू फाइंड B। अगर B मुझे मिलेगा तो B मिलने के बाद में आई विल ऐड BE प्लस EC एंड देन आई विल गेट द विड्थ ऑफ द रोड, दैट इज़ BC। ओके, नाउ अगर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊँ कि 5.8 और 4 अगर है तो थर्ड जो साइड आपको मिला 4.2, तो दिस इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट बिकॉज वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर। आप देख रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर इस्तेमाल करके हमें क्या मिला कि पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा मिला, 5.8 और 4 और 4.2। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 5.8 4.2 है, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा 4। तो ये 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, बट आपको ये सॉल्व करके बताना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE साइड BE विल बी 4 बाय टेकिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो सपोज़ मैं सॉल्व करके बताऊं तो आपको मैं बताऊंगा कि सॉल्व करके बाय टेकिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE, दैट इज A स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। Okay, what is A? A is 5.8 square and what is AB? AB is 4.2, उसको स्क्वायर करेंगे और हमें BE पता करना है, तो B स्क्वायर एज इट इज़ 5.8 स्क्वायर यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं 33.64 और 4.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 17.64 एंड वी हैव टू फाइंड BE, तो BE स्क्वायर एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ। तो व्हाट इज़ BE? B स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 17.64, तो 33.64 माइनस 17.64, तो व्हाट डज इट विल कम, अगर यहाँ पर आप माइनस करोगे 33.64 माइनस 17.64 इट विल बी 0 0, यहाँ पर आएगा आपको 16 आंसर आएगा। तो BE इज़ वॉट, B स्क्वायर इज़ वॉट, B स्क्वायर इज़ 16, B स्क्वायर इज़ 16। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो व्हाट इज़ BE? BE विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज़ इक्वल टू 4 मीटर। ओके, तो BE कितना मिला 4 मीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर मैं पेंसिल से लिखूँ तो BE इज़ 4 मीटर, BE इज़ 4 मीटर एंड नाउ आई हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द रोड? BC, BC इज इक्वल टू BE प्लस EC, 4 प्लस 4.2 मीटर ऐड करेंगे। ओके, सो आई विल राइट BC इज इक्वल टू BE प्लस EC। width of the road BC is equal to BE plus EC। ओके, और रीज़न देंगे B डैश E डैश C। ओके, व्हाट इज़ BE? BE इज़ 4 मीटर प्लस व्हाट इज़ EC? EC इज़ 4.2 मीटर। सो व्हाट विल द फाइनल आंसर 4.0 प्लस 4.2, इस तरह से इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी 8.2 मीटर। सो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स? 8.2 मीटर इज़ द width of the road। okay students, have you understood? Thank you students। So in this way we have completed a practice set 2.1
as I have already told that practice set 2.2 is not there for the exam for the year 2021. So then now we are going to move to problem set 2 of this chapter, Pythagoras theorem. What is problem set 2? Question number 1. Some questions and their alternative answers are given. Select the correct alternative. कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसके ऑप्शन दिए गए A, B, C, D. You have to write only the option number, that is B or A or C. And आपको सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा. दैट सॉल्यूशन इज़ नॉट नेसेसरी, बट एनी हाउ यू कैन शो इट इन द रफ साइड ऑफ द पेज. सो आई हैव डन इट हियर इटसेल्फ. पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रफ पार्ट में बताना है जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो. तो क्विकली मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप क्वेश्चंस जो दिए हैं उसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरन ट्रिपलेट? पाइथागोरन ट्रिपलेट A 1 5 10, 3 4 5, C 2 2 2 and D 5 5 5. आप देख सकते हैं आई हैव सॉल्व्ड दिस B1. 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16 and 5 स्क्वायर इज़ 25. एंड वी कैन सी दैट दो स्मॉल नंबर्स 9 और 16 को ऐड करने के बाद में वो ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर को इक्वल आ रहा है. 9 + 16 इज इक्वल 25. इट मीन्स दैट 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. दैट मीन्स दैट 3 4 5 दिस इज़ द पाइथागोरन ट्रिपलेट. आप इसको भी चेक कर सकते हैं. अगर मैं फ़िलहाल अभी आपको बताऊँ तो 1 स्क्वायर इज़ 1 and 5 स्क्वायर इज़ 25 and 10 स्क्वायर इज़ 100. You see that the others two small numbers are 1 and 25. 1 + 25 is equal to 26. That means it is not equal to 100. तो ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा. ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. ये सॉल्व करने के बाद में आप देखते हैं कि ऑप्शन बी जो है ये सही है. सो ऑप्शन बी को आप लॉक कर दो. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं MCQ 2 में what is given there. In a right angle triangle, if the sum of the squares of the sides making right angle is 169, sum of the squares of the sides means यहाँ पर दिया है, देखो this is the sum of the squares of the sides. यहाँ पर sides है AB and BC. These are the sides making right angle. तो आप देखते हैं इन triangle ABC right angle triangle कि which are the sides making right angle AB and BC. उसका sum लेना है, स्क्वायर करना है. तो sum ले रहे, स्क्वायर कर रहे. That is given as 169. So that's why I wrote it here given. Then what is the length of the hypotenuse? Hypotenuse का लेंथ फाइंड करना है. दूसरे सम में AB आपको कुछ दिया रहता है, BC आपको कुछ दिया रहता है. यहाँ पर आप ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूँ. यहाँ पर AB स्क्वायर + BC स्क्वायर आपको दोनों मिला के दिया हुआ है 169 बिकॉज AB and BC आर द साइड्स मेकिंग द राइट एंगल्स. और उन्होंने कहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस साइड्स आर इक्वल टू 169. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ले रहे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर + BC स्क्वायर. AB स्क्वायर + BC स्क्वायर क्योंकि हाइट स्क्वायर + बेस स्क्वायर आता है. और दोनों मिलके यहाँ पर कितना दिया हुआ है? ये दोनों मिलके 169 दिया हुआ है. और स्क्वायर वहाँ पर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13. तो विच ऑप्शन यू आर गोइंग टू लॉक? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B. ओके. आपको लिखना नहीं है B इज इक्वल टू 13 या, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखना है ऑप्शन B. एग्जाम का रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यू हैव टू जस्ट ओनली राइट द ऑप्शन दैट इज़ B. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है. तो आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट्स कंस्टिट्यूट्स अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो इनमें से भी आप वो पाइथागोरन ट्रिपलेट बताना है. तो अगर मैं फर्स्ट वाला चेक कर रहा हूँ तो 15 स्क्वायर इज़ 225. देन 8 स्क्वायर ले रहा हूँ दैट इज़ 64. देन 17 स्क्वायर ले रहा हूँ दैट इज़ 289. और दो छोटे नंबर से 225 एंड 64 इसको ऐड करके मैं चेक करूँगा. अगर 289 आ रहा है देन दिस इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. सो 225 + 64 अगर मैं रफ में ऐड करूँ इट कम्स टू 289. दैट मीन्स आई कैन राइट 15 स्क्वायर + 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर. तो इस तरह से ये आपका इक्वल आया है तो आप बोलेंगे इट इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो इसमें आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आया है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ओके. गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज सेट्स इफ A, B, C आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड A² + B² इज इक्वल टू C². आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे. ये आपका A है, ये B है और ये C है. तो देख सकते हैं कि
अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कि अगर 90 डिग्री है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो उसका उल्टा अगर ले लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देन वी कैन से दैट ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, I repeat once again, that is by converse of Pythagoras theorem, this triangle is a right angle triangle. So which option will be right? C1, that is right angle triangle. बाकी सब जो दिए गए that is wrong है, तो आंसर में आप लिखेंगे ऑप्शन सी। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 5 में देखेंगे फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ इट्स इफ इट्स डायगोनल इज 10√2। अब देख सकते हैं आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ए बी सी डी और ए सी इज़ द डायगोनल दैट इज़ 10√2 एंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहले हम साइड फाइंड करेंगे। तो साइड का फॉर्मूला होगा साइड, यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड ए बी दैट इज साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, साइड ए बी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल ए सी। व्हाट इज डायगोनल ए सी? डायगोनल ए सी इज 10√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 10 1 ज़ा 10। तो लेकिन आपको साइड मिल गया अभी ए बी 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो 4 इंटू साइड लेंगे, 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आप ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 40 यहाँ पर डी में आ रहा है, तो आपका आंसर होगा आंसर डी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू MCQ नंबर 6। तो व्हाट इज MCQ नंबर 6? ऑल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट। तो ये आपका ऑल्टीट्यूड है NQ। ये NQ क्या कर रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये हाइपोटेनस MP को, क्योंकि आप देख रहे हैं MNP इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और ये NQ जो है ये MP को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ MQ और QP ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो ये MQ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 9 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। तो ये आपका लेंथ जो है, ये जो NQ है ये आपका ऑल्टीट्यूड है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा रेफर प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, तो उसी हिसाब से मैंने नाम दिया। ये सम उसी पे बेस्ड है, इसलिए वहाँ पर हमने बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिया, तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन व्हाट वी आर गोइंग टू टेक NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP। तो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP। MQ कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, QP इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर, 4 9 इज 36 और स्क्वायर अगर उधर लेके जाए तो उसका स्क्वायर हो जाएगा एंड स्क्वायर ऑफ 36 इज 6। देयरफॉर वी कैन से दैट 6 जो है ऑप्शन नंबर C है, तो आंसर इज C। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 कहता है कि हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका हाइट दिया हुआ है 24 और बेस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। आप पाइथागोरस थ्योरम 7 स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC इज 18, 18 का स्क्वायर करेंगे, 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 18 स्क्वायर इज 324, दोनों को ऐड करने के बाद 900 आ गया। और AC स्क्वायर है, यहाँ पर AC स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 900 एंड अंडर रूट ऑफ 900 इज 30। इट मीन्स दैट विच ऑप्शन ए इज 24, ऑप्शन बी इज 30, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट MCQ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट इज इट सेज? इट सेज दैट इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, AB is equal to 6√3, AC is equal to 12 and BC is equal to 6। आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम बनाया है, AB 6√3 and AC is 12 and BC is 6। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप रेफ़र कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल है। ये अगर साइड अपोजिट एंगल है आपका BC में मान लो, तो BC को अगर आप हाफ लेके चेक करोगे, हाफ ऑफ हाइपोटेनस इज AC, तो हाफ ऑफ हाइपोटेनस 12 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 12 इज 6। तो BC आपका 6 है, उन्होंने BC 6 दिया हुआ है, तो ये मैच कर रहा है। अगर आप ऐसे मान लेते हैं कि BC इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस इज AC, तो आप चेक कर सकते हैं √3/2
इंटू AC इज़ 12, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो 6√3 तो आपका BC कितना आया 6√3। तो अब आप चेक करो कि BC आपका क्या दिया हुआ है, BC 6 दिया हुआ है कि 6√3 दिया हुआ है। BC इज़ गिवन है 6, तो ये आपका BC 6 हाफ लेके जो आया वो 6 आया और दिया हुआ है BC 6, दैट मीन्स दैट हाफ वाले का फॉर्मूला क्या था, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, क्योंकि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री रहेगा तो हम लेते हैं हाफ ऑफ हाइपोटेनस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री रहेगा तो आप लेते हैं √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हमने जस्ट दोनों चेक किया, हाफ लेके चेक किया तो BC आपको 6 आया, उन्होंने भी BC 6 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल थियरम आपका जो हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है वो जो साइड होता है वो साइड होता है अपोजिट टू 30 डिग्री, तो एंगल A जो है आपका 30 डिग्री आएगा। और अगर आप √3/2 लेके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं BC 6√3, बट दे हैव गिवन दैट BC 6, तो मैच नहीं होता है। दैट मीन्स √3/2 वो किसका फॉर्मूला था, साइड अपोजिट 60 डिग्री, दैट मीन्स BC का अपोजिट एंगल A जो है वो 60 डिग्री नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एंगल A इज़ 30 डिग्री। नाउ इफ़ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ which says that solve the following example, find the height of an equilateral triangle having side 2A। मतलब आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया, आप इसको पेंसिल से बनाइए। तो सपोज दिस इज़ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में दिस इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। इफ़ आई ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड, अगर मैं आपको ऑल्टीट्यूड बना के दिखाऊं तो आपको ऑटोमेटिकली ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इन ट्रायंगल PQR आप देख सकते हैं कि एंगल Q इज़ 60 डिग्री बिकॉज इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो आप देख सकते हैं वो। और फिर मैंने ऑल्टीट्यूड बनाया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ड्रॉ PT परपेंडिकुलर टू QR, ड्रॉ PT परपेंडिकुलर टू QR। तो एंगल T मेरा कितना है 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल P जो है इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज़ आई कैन से दैट रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। आप लिख लीजिए यहाँ पर रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो P आपका 30 आया, Q आपका ऑलरेडी 60 है क्योंकि आपका ये PQR इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और PT आपने ऑल्टीट्यूड बनाया तो ऑटोमेटिकली T जो है 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से ट्रायंगल PTQ जो है इज़ अ 30 60 90 ट्रायंगल, इज़ अ 30 60 90 ट्रायंगल। तो आपको पता है आपको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट इज़ PT एंड PT इज़ द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, PT इज़ द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि PT इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपका आएगा यहाँ पर PQ, और उन्होंने कहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2A, तो यहाँ पर साइड 2A है, PQ 2A, PR भी आपका 2A और आपका QR भी 2A है। आप तीनों भी साइड्स इक्वल टू 2A ले सकते हैं। वाई, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो PQ इज़ 2A, PR इज़ 2A एंड QR इज़ 2A। तो हमें PT फाइंड करना है, एंड PT इज़ द साइड अपोजिट 60 डिग्री, और उसका फॉर्मूला आता है PT इज़ इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस PQ। तो √3/2 इंटू हाइपोटेनस कितना है 2A, तो आप देख सकते हैं 2 कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज़ द आंसर, √3A। तो व्हाट इज़ PT, PT इज़ द ऑल्टीट्यूड, तो आई कैन राइट हियर नाउ आंसर ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप लिखेंगे हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल triangle is √3A units. Okay students, so this is the answer of question number 2, sub question 1 of problem set 2. Question number 2 says do sides 7 cm, 24 cm and 25 cm form a right angle triangle or not. We have to give the reason. So how we are going to solve it, that is
7 square. What is 7 square? 7 square is 49. What is 24 square? 24 square is 576. And what is 25 square? 25 square is 625. Now we have to check that 49 plus 576 ये कौन से दो छोटे साइड्स है? 49 576 और 625 में से दो छोटे साइड कौन से? 49 570, दोनों को ऐड करके चेक करूँगा कि कितना आ रहा है. येस, इट इज़ 625. दैट इज़ इक्वल टू द थर्ड वन 625. इट मीन्स दैट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. अगर आपका ऐसा रहा तो आप लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. बाय कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem, what we can say that the given triangle is a right angle triangle. The given triangle is a right angle triangle. Therefore 7 centimeter and 24 centimeter 25 centimeter form a right angle triangle. Forms a right angle triangle. Okay, तो बहुत easy था. अगर आपको कहेंगे कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं, और ये अगर इक्वल आ गया है तो आपको लिखना है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स, और फिर बाद में आप लिखेंगे 7, 24, 25 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. अगर आपको पूछा गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. इतना पार्ट सेम है दोनों इसमें. बाय राइट एंगल ट्रायंगल बताना है तो आप लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. So what is question number 3? Find the length of the diagonal of a rectangle having sides 11 cm and 60 cm. तो हम पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ABCD और फिर इसका डायगोनल बना लेते हैं AC. डायगोनल इज AC. ओके, तो what is given that ABCD is a rectangle and sides are 11 cm and 60 cm. ये ब्रेथ होगा और ये लेंथ होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है लेंथ होता है. तो I'll write BC as 60 cm and write AB as 11 cm. Okay, and we have to find the length of a rectangle ABCD. तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में B जो है 90 डिग्री होता है, तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल, व्हाट वी हैव टू राइट? प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल. ओके, सो आपको पता है कि नाउ ट्रायंगल, ये आपका रेक्टेंगल ABC में आपका ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, what I can write? AC square is equal to AB square plus BC square, that is height square plus base square, AB square plus BC square, and AB is given as 11 square plus 60 square, तो that is equal to 121 plus 3600. इसका 60 का स्क्वायर करने पर आपको आ जाएगा और दैट कम्स टू 3721. तो ये आपका AC स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स 3721. तो उसको आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना ऑफ 3721 एंड इफ यू फाइंड यू विल गेट इट एज अ 61 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज़ द आंसर स्टूडेंट्स? फाइनल आंसर आपका है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल. डायगोनल ऑफ अ rectangle. What is diagonal of a rectangle? We got diagonal of a rectangle as 61 centimeter. So easy. That means इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है बार बार. Even though it is a very easy sum, I am solving it for your sake, आपको समझ में आए करके. Okay, moving on to question number 4. Question number 4. What question number 4? Find the hypotenuse of a right angle triangle if remaining sides are 9 cm and 12 cm. ये सम सेम है एज लाइक दिस. तो यहाँ पर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ABC और उसमें आप सेम लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. पर यहाँ पर साइड्स अलग दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर आप 9 लेंगे, 12 लेंगे, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर लेंगे और 9 स्क्वायर आपका 81 आएगा, 12 स्क्वायर आपका 145, उसको ऐड करेंगे. तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ. तो ये आपका ट्रायंगल बन गया है ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो AB इज़ 9 एंड BC इज़ 12. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AB जो है आपका 9 उसका स्क्वायर करेंगे प्लस BC जो आपका 12 उसका भी स्क्वायर करेंगे. तो 9 स्क्वायर इज़ 81 एंड 12 स्क्वायर इज़ 144. If I add it here in the rough figure, 144 plus 81
we will get it as 225. Okay, so that is equal to 225. AC square is 225. Then what is AC? AC is equal to root of 225. What is AC? AC is equal to root of 225. Root of 225. So root of 225 is 15. So what is the answer, students? Answer will be length of the hypotenuse. Length of the hypotenuse is 15 centimeter. So this is the final answer. Length of the hypotenuse is 15 centimeter. तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज वन ऑफ द सेम. यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और यहाँ पर रेक्टेंगल में हमने राइट एंगल ट्रायंगल लेके इस सम को सॉल्व किया हो. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको सम नंबर 4 अच्छी तरह से समझ में आया है. मूविंग ऑन टू सम नंबर 5. सम नंबर 5 सेज अ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज x. तो साइड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का x है, तो ये आपका x है दिया हुआ है. एंड फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज. तो आपको AC फाइंड करना है. सी स्टूडेंट्स, व्हाट डू मीन बाय आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, एनी टू साइड. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं AB और BC इक्वल है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. और तीसरी बात यह है कि राइट एंगल क्यों है? क्योंकि ये आपका B जो है एंगल 90 डिग्री है. सो दिस एंगल the triangle in which one of the angle is 90 degree and the sides containing the right angle are equal, that triangle is called as isosceles right angle triangle. मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री है एक एंगल और बाकी कोई भी दो साइड्स जो है, या फिर राइट एंगल वाला दो साइड्स जो है AB और BC वो दोनों इक्वल है, ऐसे टाइप के राइट एंगल को हम कहेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. और उसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला ले सकते हो, साइड AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज. तो आप रेफ़र कर सकते हैं. यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आपको लिख रहा हूँ रेफ़र प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 5. 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको क्लियरली दिया था AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू AC, ऐसा आपको दिया था बॉक्स टाइप में. तो वही आपको फॉर्मूला यहाँ पर लेना है. आई विल राइट इट एज AB या BC, दोनों में से एक लिखेंगे. x दिया गया है और ये आपका 1/√2 है और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. हाइपोटेन्यूज इज AC. सो आप देख सकते हैं कि AC 1 इज AC. ओके, एंड 2√2x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? √2x. सो व्हाट इज AC? AC इज √2x. तो दिस इज द length of the hypotenuse. So what is the length of the hypotenuse? Length of the hypotenuse is √2x. आप चाहे तो यूनिट्स लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सच एन ईजी एग्जाम्पल. आप अगर ये स्क्वायर भी होता है, ABCD अगर स्क्वायर भी होता तो AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगनल मैंने कहा था. दैट इज़ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 5 में, ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने लिया था, वहाँ पर 10√2 AC मैंने लिया था. तो आप रेफ़र कर सकते हैं यही वीडियो में. तो इस तरह से बाय टेकिंग सेम फॉर्मूला AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगनल AC, उसी हिसाब से मैंने सॉल्व करके मेरे को AC मिला √2x. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मेन क्वेश्चन नंबर 2. Question number 6 says that in triangle PQR, PQ is given as 8 and QR is given as √5 and PR is given as √3. So is the triangle PQR a right angle triangle? तो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं आपको बताना है, और अगर है तो विच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री. तो कौन सा एंगल 90 डिग्री है आपको बताना है. तो दिस सेम एज प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, जहाँ पर आपको बताना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं. तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का जिस तरह से कैलकुलेशन होता है उसी तरह से कैलकुलेशन राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं बताने में भी होता है. फ़र्क इतना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप लिखते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट बताना है तो आप लिखते हैं कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स. तो अभी हम देखते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं. PQ इज़ √8. ओके, तो स्क्वायर करके देखेंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू √8 स्क्वायर. √8 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा. ओके, फिर बाद में हम QR दिया हुआ है √5, तो इसको भी स्क्वायर करके चेक करेंगे. ऑल 3 साइड्स को हम स्क्वायर करके चेक करेंगे
तो ये कितना आ रहा है, क्यू आर स्क्वायर इज़ कमिंग एज 5 बिकॉज रूट टू 5 स्क्वायर इज़ 5 एंड पी आर इज़ गिवन एज √3। तो इसको भी स्क्वायर करके चेक करेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर, तो दैट टर्न्स टू बी 3। सो इसमें दो साइड्स छोटे कौन से हैं, 5 एंड 3, इसको दोनों को ऐड करके चेक करेंगे कि वो बिग साइड को इक्वल आ रहा है या नहीं। तो 5 + 3 इज़ 8, यस ये बिग साइड का स्क्वायर भी 8 है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा कि 5 + 3 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स दैट क्यू आर स्क्वायर 5 क्या है, क्यू आर स्क्वायर प्लस 3 क्या है, पी आर स्क्वायर, और आपका 8 क्या है, पी क्यू स्क्वायर। यस ये इक्वल आ गया है। तो आप इस तरह से, ये प्रोसीजर सेम है दोनों के लिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए और राइट एंगल ट्रायंगल बताने के लिए। लेकिन यहाँ से अगर मैं लिखूँ कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स, तो आप लिखेंगे इट इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, you can say that yes, triangle PQR is a right angled triangle. Yes, which type of triangle? Right angled triangle. और फिर आप देख रहे हैं कि आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल का जब अभी हमने जवाब दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यस विच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि द लार्जेस्ट साइड इज़ पी क्यू, लार्जेस्ट साइड इज़ पी क्यू। तो पी क्यू अगर आपका हाइपोटेनस है तो आप ऐसा डायग्राम बना दीजिए, ये आपका पी क्यू, अगर ये पी क्यू आपका हाइपोटेनस है तो ऑब्वियसली पी क्यू, और भी अभी एक ही लेटर बचा है पी क्यू, तो हमने लार्जेस्ट साइड करके ले लिया है, पी क्यू लार्जेस्ट साइड है, 8 सेंटीमीटर लार्जेस्ट साइड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आर आ जाएगा। तो अगर पी क्यू अगर लार्जेस्ट साइड है तो ये पी क्यू आपका हाइपोटेनस हो गया है। व्हाट इज़ इट? इट इज हाइपोटेनस एंड एंगल ऑपोजिट हाइपोटेनस इज 90 डिग्री। तो ये आपका आर जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल आर इज़ 90 डिग्री। तो आपको क्या लिखना है आंसर में, एंगल आर इज़ 90 डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड प्रॉब्लम सेट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। उसमें सब क्वेश्चन सारे 8 मैंने MCQ सॉल्व कर दिए, और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सब क्वेश्चन 6 मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो होप सो कि आज के लिए इतना काफ़ी है। प्रैक्टिस करते रहे और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन से गुड बाय। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।